So the lesson objectives for today's class is that we need to discuss in terms of the components of a computer system regarding the von Neumann architecture. I already discussed in my last class regarding the arithmetic logic unit, regarding the control unit in a lot of detail. So in today's class, we are going to discuss in terms of a registers, that what are the different uses of registers. So I think that I discussed this diagram right in the last class, where you can see that here is a computer system placed a CPU, a small chip, and with the help of that small chip, you can see that the different types of buses I have right here. This is an address bus, this is a control bus, this is a data bus. All of these buses are transporting the data into your RAM socket, and then RAM is responsible for working out on all of the processing of your computers. Like here you can see the addresses, here you can see the data. So such as when the binary performs like 1 and 0, so that's how the computer performs. We also completed this in the last class as well, that what is the purpose of a CPU. I discussed with all of you that a CPU, central processing computer, means that it gives you an idea of the stored program computer. Stored program computer means given computers a space where you can store all of your important informations. As you can see from this diagram as well, that a CPU is responsible for working out with a control unit. You can see that this is a control unit, and this control unit has one, two, three, four registers. I have the PC, the CIR, MAR, MDR, and they are working with the help of an accumulator. So regarding these registers, now I'm going to discuss them one by one, that what is the purpose of each register. So, sir, I am having issues with my mic. Okay, no problem. Okay, so right here you can see this is one of the diagram. Now at this point, you don't need to get confused with the registers. Like you don't need to worry about the names of the registers, as we have not discussed that. I'm just trying to show you the diagrammatical example of that. Right? Like for example, you can see that this is a control unit. You have an arithmetic unit, you have a control bus, you have a system clock, and all of these buses are used for transporting the signals either into all of these registers. So what is the basic purpose of a register? Register is first of all internal memory located into your computer system. It is used for holding the data, it is used for holding the instructions, it is used for the execution of your tasks, and it is also used to move your data around your computer system, such as your input and output, your control unit, your backing storage, your arithmetic logic unit. So registers are responsible for the processing of that, but we have different types of registers for each part. So I'm going to start with the basic example of an accumulator. अब accumulator को समझने के लिए आप लोगों ने अपने जहन के अंदर सबसे पहले एक कैलकुलेटर लाना है। अब कैलकुलेटर का काम क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी होती है, तो उस कैलकुलेशन को करने के लिए हम अपने पास कैलकुलेटर पे जाते हैं। जो भी हम बटन्स अपने पास प्रेस करते हैं, वो हमारे पास डिस्प्ले पे आउटपुट होता है और हमारा आंसर जनरेट हो जाता है। अब रजिस्टर्स के काफ़ी सारे स्टेजेस हैं और काफ़ी सारे टास्क हैं वन बाय वन। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास जो मतलब कंप्यूटर का कोई भी प्रोसेस है, कोई भी टास्क है, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली एक रजिस्टर से हो गया। दिस इज नॉट पॉसिबल। हमेशा कंप्यूटर के टास्क के लिए ये सारे रजिस्टर यूज होते हैं। अब सबसे पहला रजिस्टर जो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज एन एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर का काम ये होता है कि ये सारी कैलकुलेशन स्टोर कराता है विद द हेल्प ऑफ एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक्यूमुलेटर को यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ वर्किंग स्पेस। एक ऐसी वर्किंग स्पेस होती है जहाँ पे आप अपनी सारी कैलकुलेशन करवा सकते हो, लेकिन एक्यूमुलेटर खुद से उस सारी कैलकुलेशन के ऊपर काम नहीं कर सकता। एक्यूमुलेटर को जो है वो ज़रूरत पड़ेगी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की, कि वो उसको हेल्प कर सके। बिकॉज एक्यूमुलेटर का जो बेसिक पर्पज है वो सिर्फ ये है कि वो कैलकुलेशन करता है और उनके रिजल्ट्स को स्टोर करता है, लेकिन उसके अंदर खुद पोटेंशियल नहीं है कि वो कैलकुलेट कर सके। तो कैलकुलेट करने के लिए वो फिर हेल्प लेता है आपके पास ALU की। ALU उसकी हेल्प करता है उसकी कैलकुलेशन के अंदर। तो जहाँ पे भी आपकी कैलकुलेशन होनी होती है, वर्किंग होनी होती है, यू टेक हेल्प ऑफ एन एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के अंदर सारे आपके नंबर्स आ जाते हैं और सारी आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट हो जाता है। सेकेंड रजिस्टर मेरे पास जो मौजूद है, इसका नाम है प्रोग्राम काउंटर, PC।
अब प्रोग्राम काउंटर और पीसी को समझने के लिए यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ काउंटर। आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, किसी भी स्कूल के अंदर जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, एंटर होते ही आपके सामने काउंटर रखा हुआ होता है। उस काउंटर पे जो है वो कोई भी रिसेप्शनिस्ट या कोई भी इंडिविजुअल होता है। अब उस काउंटर के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ होता है उसका काम ये होता है कि आपकी जितनी भी टास्क, जितने भी काम हैं आपके, जो पहले एग्जीक्यूट हो गए हैं या जो एग्जीक्यूट होने वाले हैं, वो उसकी नॉलेज में होते हैं। सिमिलरली अगर एक ऑफिस के अंदर कितने लोग एंटर हुए, ऑफिस के अंदर कितने एग्जिट हुए, ऑफिस में क्या काम चल रहा है, क्या काम नहीं चल रहा, एक रिसेप्शनिस्ट वो पर्सन होता है जिसके बाद उन सब का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो सिमिलरली इफ आई टेक दिस एग्जांपल इनटू दिस प्रोग्राम काउंटर, बाय emphasizing on this word counter, so this is going to hold the memory address of next instructions to be executed. Now, right here, I'm talking about two different aspects. I have one instruction and I have the address of that instruction. अगर एड्रेस नहीं होगा तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि अगर ये नहीं पता कि वो उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कहाँ किया हुआ है, सो वेयर आर यू गोइंग टू रिट्रीव दैट। अगर आप लोगों के पास आप लोगों की क्लास का लिंक मौजूद नहीं है तो तुम लोग अब कहाँ कैसे क्लास लोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड ऑफ एन एड्रेस एंड फ्रॉम दैट एड्रेस वी रिट्रीव द इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम काउंटर का काम ये होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट टास्क जो एग्जीक्यूट करना होता है, एग्जीक्यूशन तो उसकी बाद में होगी, लेकिन पहले ये पता करना है कि वो किस जगह पे रखा हुआ है। तो उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर। एंड देन this program counter passes this stored address to your memory address register। तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर का काम यह है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, जिस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है उस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है वो अपने पास वो होल्ड करेगा। इसके बाद पीसी को वो एड्रेस भेज देगा एमएआर को। अब एमएआर का क्या काम है, एमएआर का काम यह है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपकी एड्रेस को स्टोर नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद वो एमएआर को पास कर देता है। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम इस होल्डिंग नहीं है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम है कि उस मेमोरी लोकेशन को स्टोर करे, उस मेमोरी लोकेशन को सेव करे। उसके बाद फॉर डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी, उसके बाद उस लोकेशन के ऊपर जो भी आपके पास डाटा है या जो भी आपका मेमोरी से डाटा लाना है वो वहां से अपने पास रिसीव करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास यहाँ पे तीन रजिस्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहला रजिस्टर है मेरे पास यहाँ पे एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। एक्यूमुलेटर कभी भी अकेले काम नहीं करेगा, ये सिर्फ एक जगह है जहाँ पे आपकी कैलकुलेशन हो सकती है, जो बाकी डिफरेंट कंपोनेंट से काम कर सकता है। लेकिन इसको मुझे कैलकुलेशन एबिलिटी देने के लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। अब अगर मैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की हेल्प लेता हूँ आपसे इसकी एक्यूमुलेटर की, तो होगा ये कि वो उसको हेल्प करेगा कैलकुलेट कराने में। इसके बाद कंट्रोल यूनिट के साथ होता है हमेशा से प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर का काम यही है कि इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट हैज टू बी फेच्ड। जो इंस्ट्रक्शन हमें फेच करानी होती है वो उसका एड्रेस जो है वो अपने पास रखता है और फिर पीसी जो है उस एड्रेस को वो आगे एमएआर को भेज देता है। फिर हमारे पास एमएआर है। एमएआर का काम यह है कि वो स्टोर कराता है आपके पास आपकी मेमोरी लोकेशन और डाटा जो भी आपको जो है वो एग्जीक्यूट या फेच करना होता है। तो आपके पास इस डायग्राम में से दिस इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इन दिस यू कैन सी दैट in terms of your control unit, I hope that I do not need to explain this control unit। इस कंट्रोल यूनिट के अंदर आपके पास प्रोग्राम काउंटर, एम ए आर, एक्यूमुलेटर और ए एल यू आप लोगों को क्लियर है, इसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू दिस एम डी आर एंड सी आई आर। जी सर। अच्छा, अब एमडीआर और सीआईआर का काम यह है कि एमडीआर जितना भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको अपने पास से फेच कर लेगा। अब एमडीआर मेमोरी डेटा रजिस्टर, देखो नाम भी आपको बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर था, ये सिर्फ मेमोरी होल्ड करेगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एड्रेस सेव कर लेगा और डाटा लेकर आएगा। मेमोरी डेटा रजिस्टर का काम ये है कि ये इंस्ट्रक्शन को फेच भी करेगा, स्टोर भी करेगा और सब काम करेगा। और उसके बाद जब सारी चीजें मेमोरी डेटा रजिस्टर के अंदर आ जाएंगी तो वो फाइनली भेज दी जाएंगी करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, सी आई आई। अब करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आपका वो रजिस्टर है जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी मतलब फाइनली स्टोर हो जाती हैं।
आपकी डाटा भी स्टोर हो जाता है, आपका इंस्ट्रक्शन भी स्टोर हो जाती हैं, एंड दे आर ऑल सेट एंड दे आर ऑल रेडी टू बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड. So for now, right here, you can see some name of the registers, and you can see their abbreviations as well, and you can see their purpose as well. Can you please go through them and just notify back to me if you have any problem with any of these registers, the CIR, ACC, MAR, MDR, or PC? सर। जी. सर आप MDR एक और दफ़ा समझा सकते हैं? हाँ हाँ, समझा दे रहा हूँ. सबसे पहले तो देखो, आपके पास आपका प्रोग्राम काउंटर है. प्रोग्राम काउंटर उसकी इंस्ट्रक्शन पास कर देगा, सॉरी, उसका एड्रेस पास कर देगा अपने मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर फिर करेगा ये कि आपका एड्रेस स्टोर करेगा जहाँ से उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना. MAR फिर ये सारी चीजें भेज देगा MDR को. अब MDR का काम ये है कि इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करेगा, डाटा भी स्टोर करेगा, और फिर वो CIR को भेज देगा. इन शॉर्ट, PC का काम यह है कि द रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कैन बी रीड और फाउंड. जो टास्क होने वाला है उसकी लोकेशन कहाँ है, ये स्टोर करेगा प्रोग्राम काउंटर. फिर वो भेज देगा एड्रेस लोकेशन MAR को. MAR जो है स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन करंटली बीइंग रीड और फ्रॉम रिटर्न टू, विच मीन्स अब इसने वो लोकेशन स्टोर कर ली. फिर ये भेज देगा MDR को. MDR के दो नाम है, मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कहा जाता है, मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहा जाता है. इसका काम यह है कि दिस स्टोर्स डाटा विच हैज जस्ट बीन रीड फ्रॉम द मेमोरी. मतलब जो डाटा बिल्कुल रीड होने वाला होता है, एग्जीक्यूट होने वाला होता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों यहाँ पे मौजूद होते हैं. इसके बाद इसको भेज दिया जाता है CIR के अंदर. अब CIR एक वो फाइनल स्टेज है जहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है, वेयर इट स्टार्ट्स टू डिकोड एंड एग्जीक्यूट द प्रोसेस. And similarly, if you need to work out on any calculation, you take help of your accumulator, ACC, where it just performs all of the calculations and take help of your arithmetic logic unit. और कोई सवाल है इसमें? नहीं सर। इसके अलावा किसी और को? Anyone having any confusions or questions? Should I proceed? जी सर। अच्छा, अब अगर आप लोगों को सारे एड्रेसेस के नाम पता चल गए हैं तो इज दिस डायग्राम मेक सेंस टू यू नाउ? यस। Similarly, do this diagram make sense to you? Can you just observe that how the control bus, address bus, and data bus is sending signals throughout different registers?
Is it clear to all of you? यस सर। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि यू कैन सी दैट ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड यू हैव सम कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम, एंड ऑन राइट हैंड साइड you are having the components. So first of all, in your MAR you have 1 1 1 1 0 0 0 1. अच्छा, then it passes your address to MDR. MDR से फिर MAR के अंदर चले जाते हैं, सो जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। अच्छा, इसके बाद इसका प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के अंदर पूछा जाता है। और प्रोसेस की जो डायग्राम है वो आप लोगों के सामने है, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले वो प्रोग्राम काउंटर में आता है, प्रोग्राम काउंटर के बाद MAR में आता है, फिर MDR में जाता है, फिर CIR में जाता है, और फिर प्रोग्राम काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। जब आपका पहला टास्क कंप्लीट हो गया तो आप 2 पे आ जाते हो, इसी वजह से उसको इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। सो आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू जस्ट go through this screen and just share it back to me if you have any queries or any questions. Like this is a process that is asked in paper. सर फिफ्थ पॉइंट का क्या मतलब है? 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ का मतलब ये है कि जब आपका प्रोग्राम काउंटर का पहला टास्क कंप्लीट हो जाता है तो प्रोग्राम काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। मतलब ये कि आपका पहला टास्क कंप्लीट हो गया, अब आप सेकंड टास्क के ऊपर स्टार्ट हो जाओ। ओके सर। Can I move on? Do you have any problems? यस।
So can you all number this question? Like, this is the first task right here. Can you tell me where should I put the two? Or can you just share your answers with me? I just want to have all of them in a certain sequence.